Assalamu alaikum. Today we will discuss sampling in qualitative research. Before discussing the sampling techniques in qualitative research, I would like to discuss few concepts related to uh, research in qualitative method and approach. The first thing is when we talk about qualitative research, so it means that there is a unique case and you want to discuss this case in a very detailed manner and you want to conduct in-depth study. If you want to conduct in-depth study, so what type of sampling should be? It means that you will go for a selection of people who are directly involved in this phenomenon, and um, these people are not you don't want to generalize the findings. You want to discuss things in detail and you want to be specific for your cases. So before discussing sampling in qualitative research, I would like to discuss the concept of population. If you can see this picture, so what it is actually a group of people, and population is group of people who are directly involved in the phenomenon. And when we talk about the term sample, so if you can see this picture, so there is a subset of this population, and this subset is actually your respondent or your subjects of your research. So we can say sample is a subset of population. When we use the term subset, so subset means the set which has characteristics of the population. So there is another feature of sample has the same characteristics which are having uh, in population. So the same characteristics which population have, sample possess. A subset of the population selected by either probability or non-probability methods. If you have a probability sample, it means there is an equal chance to be selected and you don't know who will be selected. But if you are talking about non probabilities, or it means that you are selecting someone on random basis. But if you will talk about non probability sampling, it means you know who is actually your sample, who is your respondent, and you select them purposely. Actually, what are the concerns of qualitative researchers? So there are so many concerns. The few concerns are: first, qualitative researcher want to see the world through the eyes of your or his respondent. So you want to explore or explain the phenomenon through the eyes of your respondent. The second thing is the qualitative researcher wants to describe the context in a lot of detail. The third thing is qualitative researcher want to show how social change occur. He or she is interested in how things come to be in near future, and he really wants his research approach to be flexible and able to change. So if you have these four concerns, so it means you are assuming that your respondents are not predictable like objects. Your respondents are unpredictable. They are human being. They can be unpredictable in any manner. Maybe you are planning to observe a known phenomenon, and you are used to observe this since long time. But maybe on the day of observation, when you conduct observation, maybe your respondent will not act accordingly. So the phenomenon or the setting is maybe known, but the respondent can be unpredictable. uh,
you cannot choose randomized events. This is irrelevant in qualitative research. So non-probability sampling is a best approach for qualitative research, because if we can say, the respondents are unpredictable, and even the events cannot be randomized. So whoever and whenever your respondent will be available, so you will collect the data. So we can go for non-probability sampling in qualitative research. Then now we can start the actual concept of sampling. Sampling can be of different type. The first one is probability sampling, and there are four major types of probability sampling. The first one is simple random, when you select people on the basis of randomization. Suppose you are conducting a research and you have opted simple random sampling techniques. So it means, like, I will select my respondent on the basis of lottery system. So lottery system means I'll pick a chit and respondent will be selected. Then a systematic random sampling means there are different steps, and you will select sample on the basis of a proper systematic procedure. In systematic random sampling, first you identify your population, then you select your sample size. Then after selecting your sample size, or after determining your sample size, then you go for selection of sampling or sample on the basis of stratas or cluster. When we talk about stratas, it means the groups or categories. Groups can be based on gender, groups can be based on academic qualification, groups can be based on profession, all these things. Then another type of sampling in qualitative research is cluster sampling. And cluster sampling we will do on the basis of geographical location. We make clusters on the basis of geographical location, and from these clusters we pick our sample. Our focus is sampling in qualitative research, so I'll discuss in detail non-probability sampling techniques. And in non-probability sampling technique, there are so many sampling techniques. The first one is convenience sampling technique. हम बार बार यही कह रहे हैं कि qualitative research flexible है. Qualitative research में कोई चीज़ predict नहीं की जा सकती. Qualitative research spontaneous है. We don't go for generalizability. So we select sample on the basis of convenience. Not only on the basis of convenience, but on the basis of purpose. So the first type of sampling, there are four major type of sampling. The first type of sampling is convenience sampling. The second type of sampling technique is snowball sampling technique, and snowball sampling technique is also called chain referral sampling technique. In convenience sampling technique, you know the population, but in snowball sampling technique, you don't know the population. If the population is unknown, so you will go for snowball sampling technique. Snowball sampling technique बिल्कुल ऐसे ही है कि जब स्नो फॉलिंग हो रही होती है, सो बहुत ही माइक्रो साइज़ के जो स्नो है वो गिर रही होती है आसमान से, और फिर वो एक बहुत बड़ा एक बॉल बन जाती है. तो इसी तरह से आप जो है वो क्लूज़ ढूंढते हुए आप अपने सैंपल तक पहुंचते हैं, और फिर आप एक्चुअल सैंपल साइज़ तक आते हैं. सो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक उस सूरत में यूज़ होती है व्हेन पॉपुलेशन इज़ अननोन. सपोज़ आप ट्रांसजेंडर्स पे रिसर्च कर रहे हैं, सपोज़ आप जो है क्रिमिनल्स पे रिसर्च कर रहे हैं, सपोज़ आप एक ऐसी पॉपुलेशन पर रिसर्च कर रहे हैं विच इज़ नॉट known or which is taboo in your society. So these respondents are not
are not very commonly available in your society. So through snowball sampling you can reach it there. Then another type of sampling is called quota sampling. Quota sampling we will do on the basis of size of population. For example, you have population consisting of मेल एंड फीमेल मेंबर्स. सो आप देखेंगे कि आपकी पॉपुलेशन में मेल मेंबर्स कितने हैं और फीमेल मेंबर्स कितने हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स यू सिलेक्ट सैम्पल. अगर इस वक्त हम जो करंट पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसमें मोर देन 50% फीमेल हैं एंड देन लेस देन 50% मेल है. सो अब जब आप पॉपुलेशन में से सैम्पल ड्रॉ करेंगे तो आप जो है आपका जो कोटा होगा वो अकॉर्डिंगली होगा. इसको प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग भी कहते हैं और इसको कोटा. अच्छा, कोटा सैम्पलिंग ज़रूरी नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज़ हो. समटाइम कोटा सैम्पलिंग ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल नीड्स भी होता है. हमने देखा कि हम अर्बन रूरल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए हम रूरल एरियाज़ में हमने कोटा सेट कर दिया. हमने कहा कि रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन नॉट कम्पीट विथ अर्बन पॉपुलेशन. सो हम कहते हैं कि 20% जो सीट्स हैं वो रूरल पॉपुलेशन के लिए हैं. तो ये कोटा है, और ये कोटा जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज़ ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है. अगर हम इसी कोटा सैम्पलिंग को प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग कहेंगे तो फिर प्रोपोर्शनेट जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज़ होगा. Then the last type of sampling is theoretical sampling. And when we talk about theoretical sampling, so it means sample is drawn on the basis of theory. So if sample is drawn on the basis of theory, so हमें ये देखना होगा कि थ्योरी किसके हवाले से बात करी. फॉर एग्जांपल मैं मोटिवेशनल थ्योरीज़ की बात करी और मैं मोटिवेशनल थ्योरी में स्पेशली इन एजुकेशन सेटिंग की बात कर रही हूँ. सो एजुकेशनल सेटिंग में मैं मोटिवेशन के एलिमेंट्स क्या होंगे और मोटिवेशन से रिलेटेड कौन लोग रिस्पोंडेंट होंगे. सॉरी. सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, सो हमारी पॉपुलेशन जो है ये लोग होंगे और यहाँ से हम जो है वो सैम्पल ड्रॉ करेंगे. देन in qualitative research we actually don't use the term respondent. In quantitative research we use the term respondent, but in qualitative research we use the term informant. Rather subject or respondent or sample, we use the term informant because these are the people who provides information. So that's why we view respondent as an active participant in the research. So they inform the researcher about their culture. So लिहाजा हम इनके लिए जो term use करेंगे वो हम करेंगे informant rather respondent और subject. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जो हमने पहले बात करी थी, द फर्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, देन द सेकंड वन इज़ कोटा सैम्पलिंग एंड द थर्ड वन इज़ स्नोबॉल सैम्पलिंग. उसको उन्होंने फिर मज़ीद जो है वो टाइप्स में डिवाइड कर दिया. लाइक every in each type of research, either it is qualitative or quantitative, आप जो सैम्पल कलेक्ट करते हैं वो करते हैं on the basis of purpose. So another term which we use in qualitative and quantitative term both, purposive sampling. और purposive sampling में आप उन्हीं लोगों को include करते हैं in your study who are directly involved. For example, if I'll conduct study with the teachers, so purposely मैं teachers को ही recruit करूँगी, teachers को ही include करूँगी in my study. So this is called purposive sampling. Then जब मैं purposive sampling कर रही होंगी और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इफ़ आई एम कंडक्टिंग अ फिनोमेनोलॉजी और एक मैं एग्ज़ाम्पल इसकी शेयर करती हूँ आपसे. मैं देख रही हूँ कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो जो कि रिसेंटली स्कूल्स में पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराया गया है. इस बायोमेट्रिक सिस्टम से टीचर्स की अटेंडेंस और इनकी मोटिवेशन, इनका प्रोफेशनल एटीट्यूड, इसके अंदर क्या चेंज आया. तो लिहाजा मैं
पर्पजिव सैम्पलिंग करूँगी, मैं उन स्कूल से टीचर सेलेक्ट करूँगी जहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है। देन मैं जब वहाँ पर डेटा कलेक्ट करने जाऊँगी, सो मैं अकॉर्डिंग टू फिनोमेनोलॉजी है, तो मेरे पास जो साइज़ होगा इट शुड नॉट बी मोर देन 35, यानी ये 5 से 35 तक का सैम्पल होगा। सो मैं इसको जो है मैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस मैं वहाँ से टीचर्स को सिलेक्ट कर लूँगी, लिहाजा दिस इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। देन अगेन एज आई हैव यूज द टर्म कोटा सैम्पलिंग, सो कोटा सैम्पलिंग किन सिचुएशन में यूज़ होगी, क्या मैंने कोई कोटा जो है वो एलोकेट किया है, असाइन किया है कि मैं इतने % डेटा जो है मैं अर्बन स्कूल से लूँगी और इतने % डेटा मैं जो है रूरल स्कूल से लूँगी, अर्बन का कोटा क्या होगा और रूरल का कोटा क्या होगा, तो ये कोटा सैम्पलिंग होगी। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि स्कूल्स में, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में कितने टीचर हैं जो कि घोस्ट टीचर हैं, तो ये घोस्ट टीचर्स अननोन पॉपुलेशन होगी, मुझे नज़र नहीं आएंगे और मैं इनके बारे में आसानी से नहीं पहुंच सकती, तो लिहाजा मैं चेन रेफरल सैम्पलिंग के थ्रू या जो मेरे की इन्फॉर्मेंट्स होंगे मैं उनके थ्रू उन लोगों तक पहुंचूंगी जो कि घोस्ट टीचर्स होंगे। तो ये एक और एग्जांपल हो गई स्नोबॉल सैम्पलिंग की। एक और मेरे पास जो है टर्म है विच जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ और पर्पजिव सैम्पलिंग के लिए, दिस इज़ कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग ऑल्सो, क्योंकि आप ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट आप जो है वो कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से सैम्पलिंग को। सो इफ़ आई शो दिस पिक्चर टू यू, इन दिस पिक्चर यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस मैंने पॉपुलेशन में से अपने सैम्पल मैंने ड्रॉ किया। सो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको पिंक एंड ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने यहाँ से सिर्फ ग्रीन कलर की जो मेंबर्स थे विच आर इन ग्रीन ड्रेस, मैंने उनको पिक कर लिया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ और नीड ऑफ माय रिसर्च। सो दिस इज़ कॉल्ड पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक। ग्रीन एंड दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ माई जजमेंट, जो मुझे लगता है ज़्यादा रेलिवेंट है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन द फिनोमिनन। तो सिलेक्ट टिपिकल पर्सन एंड फ्रॉम द वाइडेस्ट वैरायटी। कोटा सैम्पलिंग में बिगिंस विद 2 डिसीजन, एक तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉपुलेशन की और हमें कितने लोग चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड पार्टिसिपेंट हु हैव एक्सपीरियंस विद और नॉलेज ऑफ द रिसर्च टॉपिक, एज आई हैव ऑलरेडी said, who are directly involved in phenomenon. And the other thing is मैंने कितने लोग लेना है, हाउ मेनी पीपल। सो मैं जो मेरे प्री डिटरमिन्ड नंबर होंगे, जो मेरा प्री डिटरमिन्ड सैम्पल साइज़ होगा, मैं उतने लोग वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। स्नोबॉल सैम्पलिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन स्नोबॉल सैम्पलिंग वी रिक्रूट हिडन पॉपुलेशन दैट आर नॉट ईजीली एक्सेसिबल टू द रिसर्चर्स। यहाँ पर जब हम another type of sampling which is called the theoretical sampling. So theoretical sampling कैसे draw होगी? देखिए theoretical sampling draw होती है on the basis of the idea of theoretical saturation. हमारे पास कुछ journal research questions होते हैं और उन journal research questions की बेस पे हम sample draw करते हैं ताकि हम पॉपुलेशन से या जो हमारे रिस्पोंडेंट्स या इन्फॉर्मेंट्स हैं उनसे हम डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकें। व्हेन वी कलेक्ट रेलेवेंट डेटा, सो हम उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा हम कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड को यूज़ करते हैं। कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड को यूज़ करते हुए इफ़ वी विल फाइंड समथिंग न्यू, सो वी विल अगेन गो फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड वी विल कलेक्ट डेटा टिल द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सो जिस पॉइंट पे हमें सैचुरेशन होती है, नहीं जिस पॉइंट पर हमारे पास डेटा रिपीट होने लगता है, उस पॉइंट पे हम सैम्पलिंग को स्टॉप कर देते हैं और ये वो पॉइंट होता है जो डेटा सैचुरेशन का पॉइंट होता है। अच्छा, डेटा सैचुरेशन के पॉइंट के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो। लाइक आप
आपकी पॉपुलेशन डाइवर्स हो, आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, तभी आप जो है वो डेटा सैचुरेशन पे जाएंगे। और इस टाइप की जो सैम्पलिंग है, दिस इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। अच्छा, एक और टाइप ऑफ सैम्पलिंग है विच इज़ कॉल्ड क्रिटिकल केस सैम्पलिंग। एंड इन क्रिटिकल केस सैम्पलिंग, not necessarily they are directly related to your research, but they are important. Like if you are conducting data from, if you are collecting data, or if you are conducting research in educational setting, in an institution, or in a school, so और कौन से लोग हैं जो कि स्कूल सेटिंग में तो नहीं हैं बट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, तो आप स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे एंड यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर्स कैन बी पेरेंट्स, कैन बी कम्युनिटी members, they can be politicians, they can be policy makers. तो critical case sampling. Then मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप कोशिश करेंगे कि आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, डाइवर्स हो, और आप उसमें मैक्सिमम वेरिएशन लेकर आएँ। नॉट नेसेसरली कि आप जो है एक ही सेटिंग से आप लोगों को उठाएं। एक मैं एग्जांपल देती हूँ। आप फिनोमेनोलॉजी कंडक्ट कर रहे हैं और उस फिनोमेनोलॉजी में आप एक फिनोमेनन में इन्वॉल्व लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये फिनोमेनन जो है ये डिफरेंट जगह पे अकर हो रहा है, सो आप कोशिश करेंगे कि जिन जिन पॉइंट्स पे वो अकर हो रहा है वहाँ से आप जो है वो डेटा कलेक्ट करेंगे, बजाय ये कि किसी एक ही जगह से आप डेटा कलेक्ट करें। क्योंकि अगर आप किसी एक ही जगह से डेटा कलेक्ट करेंगे सो यू कैन ईज़िली रीच एट पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और आप जो है वो आपका डाइवर्स नहीं होगी, आपकी सैम्पलिंग हेट्रोजीनियस नहीं होगी, तो जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो बहुत ही नैरो होगा और बहुत शैलो आपकी फाइंडिंग्स होंगी। अगरचे जनरलाइजेबिलिटी क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है वो नहीं है, इशू नहीं है, बट फिर भी आप किसी पॉइंट पे प्रोपोजिशन तो डेवलप करते हैं ना, यानी किसी पॉइंट पे आप कोई कंक्लूजन तो ड्रॉ करते हैं। एंड व्हेन यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन, सो यू कैन नॉट ड्रॉ कंक्लूजन इफ़ यू आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द same setting or from one setting. There is another type of sampling which is called intensity sampling, and in intensity sampling this is where researchers sample the same characteristics over and over. यहाँ पर आप सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनसे आप बार बार डेटा लेते हैं, और फिर बार बार जब यानी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा लेते हैं, और फिर आप उनके जो परसेप्शंस हैं या जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी सैम्पलिंग। ये आमतौर पे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में भी यूज़ होता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस जो हैं वो इफ़ यू नो अबाउट कि व्हाट क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेज आर दोज टाइप ऑफ रिसर्चेज विच आर कंडक्टेड इन अ सेम पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 मंथ्स में एक स्टडी कंडक्ट करना है, सो मैं जो भी डेटा कलेक्ट करूँगी उस 3 मंथ्स में कलेक्ट करूँगी फ्रॉम दी रिस्पोंडेंट्स। बट इफ़ आई एम कंडक्टिंग अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, सो मैं सेम रिस्पोंडेंट से डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट करूँगी। लाइक मैं 2018 में डेटा कलेक्ट किया, फिर उसके बाद उन्हीं रिस्पोंडेंट से 2019 में, देन 2018 में, यानी सेम इंटरवल के साथ मैं उनसे डेटा कलेक्ट करूँगी। सो इंटेंसिटी सैम्पलिंग कैन बी डन इन क्रॉस सेक्शनल टेक्निक and can be done in longitudinal technique, but most of the time it is done in, or it is used in longitudinal study. When we talk about sample size, कि qualitative research में हम कहते तो हैं कि हमारा sample size बहुत short होगा, but कितना होगा? This is something which is a very important question. So आम तौर पे it is smaller than quantitative study, but there are 2 journal guidelines. The first thing is the number of participant is sufficient when the extent to which the selected participant represent the range of potential participant in this setting. जो मैंने इन्फॉर्मेंट्स लिए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हों और द होल पॉपुलेशन को, यानी सेटिंग में जो लोग मौजूद हों उनकी वो एक वेल रिप्रेजेंटेशन हो।
Then the second thing is the point at which the data gathered begin to be redundant. बार अब डेटा रिडंडेंट हो रहा हो, उसमें कुछ नया चीज़ ऐड नहीं हो रही हो, वो सेचुरेट हो रहा हो. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स. एक तो ये कि वेल रिप्रेजेंटेटिव डेटा हो, और दूसरा ये कि जब हमारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही हो बल्कि रिपीट हो रही हो. व्हेन वी टॉक अबाउट अच्छा, अब हम एक तो ये हमने एक गाइडलाइन तो ये हो गई कि रिप्रेजेंटेटिव हो डेटा, और दूसरा ये कि डेटा सैचुरेशन का पॉइंट हो, तब हम वो हमारा सैम्पल का साइज़ होता है. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस में हम देखते हैं कि किस तरह से सैम्पल ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल इन एथनोग्राफी आपका सैम्पल जो है वो पीपल यानी लोग हो सकते हैं, देन प्लेसेस, देन कॉन्टेक्स्ट, टाइम हो सकता है, इवेंट हो सकता है. सो फ्रॉम दीज 5 components you can draw sample. Interviewer can be interviewer can be interviews can, हम इस तरह लेते हैं. Key informants can be people from the context from where you are drawing the data or collecting the data. यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि जगह क्या है, किस जगह पे आप डेटा जो है इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, और टाइम क्या है. सो यू कैन कलेक्ट द डेटा इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, और यू कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. यू कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, अगरचे आपका ऑब्जेक्टिव सेम हो. इसी तरह से समटाइम आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं, और ये आप करते हैं रिटन यानी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप करते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स बताऊँ, एंड इट इज़ गिवन इन क्रेसवेल्स बुक. क्रेसवेल कहता है कि एथनोग्राफी में आपका जो फोकस है वो या तो कॉन्टेक्स्ट और कल्चर है. सो सैम्पल साइज, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ सैम्पल. आपका सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन अ कल्चरल इवेंट, सो आपने उस कल्चर की स्टडी करने के लिए आपकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो उस इवेंट में इन्वॉल्व उन तमाम लोगों के साथ होंगी. सो देयर इज़ नो फिक्स सैम्पल साइज़, एंड यू कैन डेटा कलेक्शन टेक्निक आपकी ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज़ होंगी. इफ़ यू आर कंडक्टिंग अ नैरेटिव रिसर्च, सो आपका जो फोकस है दैट इज़ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड सीक्वेंस. सो आपका जो सैम्पल साइज है इट शुड नॉट बी मोर देन 2, सो 1 and 2. And here your data collection techniques are stories from individuals and documents. If you are conducting a phenomenological research, so people who have directly involved and who have experienced a phenomenon, so your sample size can be 5 to 25 or not more than 35. Suppose if you are conducting a grounded theory, so here the objective is develop a theory, ground the theory, modify the theory. So here your focus is develop a theory from grounded in the field data. So आपका sample size 20 to 60 participant हो सकता है. आपकी population diverse होनी चाहिए, heterogeneous होनी चाहिए, from all sector of the society. एंड इसमें आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं. यू कैन कलेक्ट डेटा थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एंड थ्रू कलेक्शन ऑफ डेटा आप प्रोपोजिशन डेवलप करते हैं जिसमें फैक्टर्स के दरमियान आप एसोसिएशन फॉर्म करते हैं. देन अनदर टाइप ऑफ रिसर्च इन क्वालिटेटिव अप्रोच दैट इज़ कॉल्ड केस स्टडी. यहाँ पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल की, किसी इवेंट की, किसी ऑब्जेक्ट की. सो यहाँ पर यू कैन नॉट डिटरमिन सैम्पल साइज़. आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं, सो आपका जो सैम्पल है वो उस ऑर्गेनाइजेशन
के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसकी आप स्टडी कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर रहे होंगे, ऑब्जर्वेशंस हो रही होंगी। तो मल्टीपल टाइप ऑफ टूल्स आप यूज़ करेंगे और उसकी बेस पर आप उस केस को स्टडी करेंगे। सो टू टाइप्स ऑफ रिसर्च में यू कैन नॉट डिटर्मिन सैम्पल साइज। द फर्स्ट वन इज़ एथनोग्राफी एंड द लास्ट वन इज़ केस स्टडी। इन अदर 3 टाइप्स ऑफ qualitative researches you can determine sample size, like in narrative 1 to 2, in phenomenology 5 to 25, and in some cases 35, in grounded theory 20 to 60. Sometime you can sometime you cannot get data, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में आप बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और आप एक ऐसे फिनोमेनन की स्टडी कर रहे होते हैं जो किसी का पर्सनल, जिसमें जो है ना फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. सो मे बी पीपल डोंट वांट टू गिव यू रिस्पॉन्स और पीपल डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन योर स्टडी. सो यू कैन improve your response rate through different techniques. आप अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, रेपो मेंटेन कर सकते हैं. पहले उस सेटिंग में थोड़ा सा आप अरसा टाइम स्पेंड करें, उन लोगों से घुले मिले इंटरेक्शन करें और फिर उनको पर्सनलाइज करें उस इनविटेशन को, यानी ऑन द बेसिस ऑफ योर सोशल इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ योर रेपो, यू कैन आस्क देम टू response on your question, or you can ask them to involve or participate in your study. The second thing is offer money. Sometime ख़ास तौर पे जब स्नोबॉल सैम्पलिंग हो रही होती है तो वहाँ पर आपको डेटा इजीली नहीं मिल रहा होता. सो आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए समटाइम यू हैव टू ऑफर मनी. सो उससे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उससे आपका रिस्पॉन्स रेट, अगर आप कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं तो लोग विलिंग होते हैं और मोटिवेट होते हैं टू पार्टिसिपेट. अगर मैं इस पूरे इसको कंक्लूड करूं, सो मेरे पास एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं इन क्वेश्चंस को ओपन कर रही हूं आप लोगों के लिए. एंड आई होप कि आप लोग मुझे जो है इन थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप और थ्रू ईमेल्स आप मुझे इन रिस्पॉन्सेस को आंसर करेंगे. मैं आपको there are multiple case studies and you have to answer these questions. Suppose in one situation, researcher wanted to conduct a research on students who are enrolled in thesis writing course to explore their perceptions about supervisors' supporting attitude. So what type of sampling technique will you adopt or adapt? कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे? द सेकेंड थिंग इज़ रिसर्चर एम टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन स्टूडेंट्स बिलीफ अबाउट क्वालिटी टीचिंग. फॉर दिस यू विजिट कैफेटेरिया एंड रेंडमली आस्क स्टूडेंट्स अबाउट देयर बिलीव्स. यहाँ पर आपकी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक होगी? दिस यू हैव टू टेल. The third is researcher aim to conduct a study on men and women belief about homosexuality. Population is hidden, so what type of sampling technique will you use? The fourth situation is researcher aim to identify the beliefs or stereotypes of urban population regarding gender stereotypes. Urban population is twice as rural population, so what type of sampling technique will you use here? Another case study is researcher aim to develop a theory for which he selected participants from all sectors of population in large number. So which sampling technique would be useful for conducting this type of research? The second last one is researcher aim to analyze the challenges faced by teachers during their early career period, for which they interviewed principals as well. So which type of sampling technique
is would be suitable. The last one is researcher intended to conduct a research on achievement. For this, he wanted to find out the feelings of average and gifted student about achievement in examination. In this study, he conducted few interviews of below average students as well. So, which sampling technique would be most suitable for this type of study? So, this is all about today's lecture. In the end, I have given you exercise to solve, and inshallah, I'll get responses on WhatsApp group from you people. I just want to conclude: sampling is or sample is a subset of population. You sample should have similar characteristic of population. When we talk about subset, so it means subset has similar characteristics of the whole set or the main set. ठीक है, there are different types of sampling technique. The four major type of sampling techniques are convenience sampling, quota sampling, snowball sampling, and theoretical sampling. In each and every type of research, we collect data through purposive sampling, and on the basis of purpose we select sample or population. Then in qualitative research, as generalizability is not an issue, so the sample size is relatively smaller than quantitative research. Most of the time we select sample on the basis of convenience. If population is unknown, so we use a snowball sampling technique. If we want to draw a theory or if we want to develop a theory, so we will go for theoretical sampling technique. If the population, if we want to go for a proportionate sampling, like हम sample size जो है on the basis of proportion of population का जो size है या members का जो size है उसकी base पे लेंगे, तो we will go for quota sampling technique. Sometime हम उन लोगों को भी involve करते हैं who are not directly involved in phenomenon but indirectly involved, and they are very important. So this type of sampling is called critical case sampling. And there is another type of sampling technique is called intensity sampling technique, जहाँ पर हम उसी सैम्पल ग्रुप से हम बार बार डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो वैलिडेट हो जाए, और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं. सो होपफुली आप लोगों को सैम्पलिंग टेक्निक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, और आई विल वेट योर रिस्पॉन्सेज इन व्हाट्सएप ग्रुप. आप लोग व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं मुझसे, और इसके हवाले से जो भी मटेरियल है, मटेरियल आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू, सो वो भी उस पर भी हम मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.